Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my your class. Now I am going to discuss about the parts of speech and I am asking some questions to the students. और मुझे इससे पता चल सकेगा कि स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉपर तरीके से समझ है कि नहीं है. चलें जी. Just first tell me how are you all? Fine. All are fine. Okay. Just welcome to all after vacation. कोविड-19 की वजह से जो ये वोकेशन हमने गुजारे हैं, बहुत स्ट्रगल का जो डेज़ गुजारे हैं, उसके बाद हम लोग बैक आए हैं और अपनी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं. लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है दोबारा, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली फेस करना है. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम सरेंडर कर दें. स्टडी, एजुकेशन, कोई चीज़ रुकावट इसके सामने नहीं आ सकती. चलें, नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच. Did you know how many parts of speech? Yes. Okay. Yes. Now tell me, you one, how many parts of speech? There are 8 kinds of parts of speech. One is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, and fifth is adverb, preposition, conjunction, and interjection. Good. There are 8 parts of speech. One is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. Articles part of speech नहीं है, लेकिन इस parts में नहीं आते, but it is a सब part of speech. इस बहुत important part है इसका. जी, who can explain the definition of noun or pronoun? There one is. Okay, Zainab, you tell. Noun means personification are noun, for example, Noun is Noun is the name of person, place or thing. For example, okay. Just you tell me how many things around you there is noun. Okay, the name of person. the name of person Yes. is Or and pronoun the word no. How many nouns shapes over there? आप यहाँ से कौन से चूज कर सकते हैं? यहाँ पे noun है. and noun is Yes, you tell me. all of word is noun. Yes. Desk, bench, fan, door, bottle, everything. Wow. Which has name? These are called nouns. Only definitions is not equivalent. आप सिर्फ definition याद करके इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे कि just definition important है. आपका मेन मरकज़ और आपका मेन सेंटर होना चाहिए इसकी कॉन्सेप्ट को. ठीक है जी. तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. फॉर एग्जांपल एवरीथिंग अराउंड अस, चाहे वो बहुत बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसका भी एक नाम है. चाहे वो एक ज़र्रा क्यों ना हो, अगर हम अपने हैंड को किसी चीज़ से टच करते हैं और उसके ऊपर कुछ ज़रात लग जाते हैं, तो दीज आर नाउन्स. उसका नाम होगा तो हम पुकार पाएंगे. तो इस तरह ही नाउन है. ठीक है जी. गुड, वेल डन. सिट डाउन. सेकेंड वन इज़ है जी, नेक्स्ट वन है जी प्रोनाउन. यस, यू वन. Pronoun is the word which is used in place of noun is called pronoun. Pronoun is the word which is used in place of noun. Examples? He, they, it, it. Yeah. He, she, they, it, who. अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे nouns, प्रोनाउन जो प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, सम जगह पे वो सेंटेंसेस में अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं. वो एज एन इन कंजक्शन यूज़ हो रहे होते हैं, एडजेक्टिव यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है ना. तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जब वो एज इन प्रोनाउन यूज़ हो गए तो वो नाउन है. जैसे कि हु, ये प्रोनाउन भी है और ये कंजक्शन भी है. क्लियर जी. ठीक है जी. सिट डाउन. नेक्स्ट वन इज़ नाउन प्रोनाउन हो गया जी. एडजेक्टिव्स. व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स? An adjective is a word that is used To add the meaning of. in quantity like of a noun or a pronoun. For example, Who will explain later? कौन इसको मज़ीद कर सकता है प्रॉपरली?
around her. Yes, you tell also. A word that qualify and add the meaning of a noun. Pronoun is called adjective, like to cry, Hmm. sleep, drink, Hmm. etc. No, it is not justified. Again, who's tell the adjectives? Yes, you tell. The noun that describes the nouns are the adjective, like someone's goodness, badness, or quality of a person. The word which explain, which shows and which explain and add to the meaning of noun और pronoun, जो noun और pronoun के meaning में इजाफा करे वो adjective कहलाते हैं. Examples, बैठ जाइए. एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई भी नाउन और pronoun आ गया, अगर आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो उसको आप एडजेक्टिव लगाकर एक्सप्लेन करेंगे और वो एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है नाउन और प्रोनाउन के. अगर इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन पे आप जाएंगे तो आज का आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड अदर नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने वाले अल्फाज को, उन वर्ड्स को आप एडजेक्टिव कहते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए जैसे बॉय है, अगर हम इससे पहले गुड या बैड लगा दें तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होंगे जिसने जो नाउन है वो बॉय और बॉय के वर्ड के में इजाफा किया, उसके पर्सनैलिटी को बताया है कि वो गुड है या बैड है. जैसे एक ट्री है, अगर ट्री को हम देखते हैं कि वो टॉल है या वो स्मॉल है या वो बिग है या शॉर्ट है, जो जिस तरह का भी है उससे पहले हम लगा देंगे तो वो जैसे हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, अगर गर्ल के साथ पहले इंटेलिजेंट लगा देंगे तो गर्ल के मीनिंग में इजाफा हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी के मीनिंग में इजाफा हो जाएगा. तो द वर्ड्स विच आर यूजिंग फॉर एडिंग for the meanings of the noun or pronoun, these are called adjective. Okay जी, verb. Verb. Yes. थोड़ा सा रिफ्रेश करने वाली बात है. This is the first day of the school and after that the class will coming. Yes. जी बहुत सिंपल लेके आइए. Action words are called वर्ब ऐसा होता है जो एक्शन हो, जो एक्शन किसके, एक्शन वर्ड हु एक्सप्लेन नाउन और प्रोनाउन के जो एक्शंस होते हैं वो वर्ड जो हैं वो वर्ब कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर इसकी उर्दू में हम पहचान क्या करेंगे, उर्दू में पहचान आप बताइए. किसी वर्ब को पहचानने के लिए हम उर्दू में क्या पहचान करेंगे जी, नून अलिफ ना आता हो. एग्जैक्टली जैसे दावत देना, खाना खाना, बात करना, जाना आना, बैठना उठना. कुछ वर्ब विजिबल होते हैं, कुछ वर्ब अनविजिबल होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम लोग विजिबल कौन से वर्ब है जी आप बताइए प्लीज़. खाना खाना, उसकी स्टेट को हम देख सकते हैं तो हम इसको कहेंगे ये नज़र आते हैं जी. एक्शन जो जी फील यस, फील महसूस करना जी. कुछ जी हेट, बिल्कुल हेट है. ये वो वर्ब हैं जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो अपने एक्शन में होते हैं. तो हम एक्शन वर्ड्स को जो बयान करें नाउन और प्रोनाउन के स्टेट को, हालत को बयान करें तो उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. सिट डाउन जी. अनदर डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब यस, adverb yeah, modify the meaning of verb. These words are called adverb. जो verb के meaning में इजाफा करें, जो noun और pronoun के meaning में इजाफा करते हैं वो क्या होते हैं, adjective. बहुत प्रॉपर और बड़े माइनर साइज का डिफरेंट है. नाउन प्रोनाउन आप इनिशियल स्टेज में हो, यू आर इन 8th क्लास, तो आपने इनिशियल स्टेज का पढ़ना है. नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में जो इजाफा करेगा वो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा वो एडजेक्टिव. जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा वो एडवर्ब. मिसाल के तौर पर एग्जांपल दीजिए. एग्जांपल कौन देगा जी जी जी. फॉर एग्जांपल स्पीक इज़ अ वर्ब. स्पीक लाउडली. तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा किसने किया, लाउडली. फिर क्या हुआ, एडवर्ब. चलिए जी, कोई भी 2-3 हम लोग लेते हैं वर्ब और उसके मीनिंग में जो इजाफा करेंगे वर्ड वर्ब कहलाते हैं. मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल जी
वॉक, वॉक स्लोली, वॉक फास्टली, वॉक मतलब फास्टली आप करेंगे तो फास्टली और स्लोली इसमें क्या आ जाएगा, एडवर्ब। और हमेशा एडवर्ब वर्ब के बाद लगती है, ठीक है जी। जो एडवर्ब होते हैं वर्ब के बाद में आएंगे, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पहले आएंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, अभी दोबारा पूछ लूँ मैं? Yes. चलें जी, आप बताइए। नाउ उसको एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कीजिए। Yes, Sina. जी, मीनिंग में इजाफा करने वाले। और एडवर्ब वर्ब, जी जी, यस, और एन अदर वर्ब, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ देयर 3 लेफ्ट। प्रेपोजिशन, इसको उर्दू में कहते हैं हर्फ जार, प्रेपोजिशन। जी, सिट डाउन, हु विल टेल? यस, यू टेल। A word that show relationship between noun or pronoun is called जी, the word which shows the relationship between noun or pronoun. noun or pronoun to an other To another adjective, verb and an other noun or pronoun, इसको हर्फ जार बोलते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच को आपस में रिलेट करते हैं। तो उसके एग्जांपल कौन बताएगा? ज़ैनब। Can cause it of जी, ऑफ, इन, ऑन, बाय, above, up, after, behind, ये सब क्या हैं? ये preposition है। ओके जी, नाउ द 7th one is conjunction. Who explain the definition of conjunction? Yes. Conjunction are the words that join two words, clauses or sentences. Yes, the words which join करते हैं two words को, two nouns को, two pronouns को, आपस में जो जोड़ देते हों, two phrases को, two sentences को, वो क्या कहलाते हैं? Conjunction. Examples? Yes, examples. Yes, आसिफ एंड असलम, तो एंड क्या हुआ? कंजक्शन। और उसमें अगर हम लोग कहें द बॉय हु इज़ गोइंग टू लाहौर, लड़का जो लाहौर जा रहा है, तो हु जो होगा वो कंजक्शन हो गया, उसने आपस में रिलेट किया है। ठीक है जी, चलिए जी, नाउ सिट डाउन। लास्ट वन इज़ interjection. When I was student, I always, yes, everybody stand the hands. इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा जी? आप बताइए। Yes. Introduction is used to explain sudden feelings and emotions and Sudden feeling and the words which are used for the sudden feeling, emotions, sad इसमें आते हैं, sorrow, wonder, जिसमें इसमें एग्जाम्पल जो हुरा, आहा, अलास एंड etc. Okay, now tomorrow I will check in examples in printed test and you have to prepare it. Tomorrow I will check to you. आपने इसको पढ़ना है, इस एग्जाम्पल्स आपने राइट करके लेके आनी है। ठीक है बच्चों? और दिस इज समहाउ शॉर्ट टाइम ट्यूटोरियल, और आपको इंशाल्लाह कल इसका थोड़ा सा प्रिंट टेस्ट बनेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।